Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do MCQs of chapter number 7, that is coordinate geometry. Question number 1 is, if the coordinates of 4 points are A, B, C and D, the relationship between the distance AB and CD is. We have to tell that whether AB is greater than CD, less than CD, equal to CD, or it is equal to half of CD. How we can tell this? By using distance formula. We are going to find distance of AB and distance of CD, and then we'll tell the relationship between AB and CD. Let's start the question. As you know that the distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under root. Simply we are going to replace values of AB and CD, and the result is 2.9, 3.4. You're not going to do any calculation by yourself. Simply use calculator, type each and everything like square root, brackets, square everything once and just find answer. Because calculation अगर आप खुद से करेंगे तो कोई mistake भी हो सकती है, और वैसे भी MCQs में you just have 20 minutes to solve the question. तो इसके लिए आपने ना तो वर्किंग शो करनी है और ना ही इसकी कोई ज़रूरत है. तो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज पुट करें और उसके बाद यू विल गेट द आंसर. एज यू कैन सी दैट ए बी इज़ 2.9 एंड सी डी इज़ 3.4. 2.9 is less than 3.4. It means that the correct option is B. AB is less than CD. Let's move towards second part. In the second part, they are saying if A and B are any 2 points on a coordinate line, that is number line, then its midpoint will be. आपने जब भी दो चीज़ों का मिड पॉइंट फाइंड करना, जैसे हमने x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, तो व्हाट वी डू, वी राइट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. Likewise, जब आपने A और B का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो what are you going to do? You'll just simply add them and divide by 2. So A plus B by 2 means A option is the correct option. Right. Now move towards third part, that is 5 2 7 0 1 minus 2 minus 1 0. They are the vertices of a parallelogram, square, trapezium, kite. We have to tell कि ये 4 vertices किसके vertices है. तो it means that we have to find distance of all these vertices. ठीक है, हमने इनका distance find किया इन points का, और फिर we will identify कि ये square बन रहा है, parallelogram बन रहा है, trapezium है या kite है. So let's start the question. First of all, we'll give these vertices names for our ease. हम A, B, C, D इनको नेम दे देते हैं. पहले हम A, B का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम B, C का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर C, D का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और फिर हम A, D का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. Then you'll get the answer 2 square root 2, 2 square root 10, 2 square root 2 and 2 square root 10. As you can see that the opposite sides are same. AB और CD equal है और BC और AD equal है. It means that most probably आपके पास दो options हैं. Opposite sides हमारे पास same होती हैं रेक्टेंगल की या पैरेललोग्राम की, राइट. सो अगर हमें ये प्रूव करना हो कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, ये यूज़ पाइथागोरस थ्योरम टू प्रूव इट. दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अगर तो 90 डिग्री का एंगल प्रूव हो जाता है, इट मीन्स दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, और अगर नहीं होता तो पैरेललोग्राम. बट इफ़ यू लुक एट द ऑप्शंस विच आर गिवन टू अस, ठीक है, तो इन ऑप्शंस में यू कैन सी दैट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. रेक्टेंगल का तो ऑप्शन ही नहीं है. It means that the parallelogram is the correct option. Let's move towards next part, that is the triangle with vertices 1 minus 3, 3 2 and minus 2 4 is. आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपने ये बताना है कि इन 3 वर्टिसेस से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसकी टाइप क्या है. क्या वो इक्विलेटरल है, राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है या राइट आइसोसेलेस है. ऑब्वियसली वी कैन टेल दिस बाय फाइंडिंग द लेंथ्स ऑफ दीज वर्टिसेस. इन वर्टिसेस से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड देन वी कैन टेल. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गिव नेम टू दीज वर्टिसेस P, Q and R. ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, इट्स नॉट कंपल्सरी टू राइट दिस नेम, बट इससे आपको थोड़ा सा ईजी और क्लियर हो जाएगा कि आप किसकी लेंथ फाइंड करें. ठीक है, सो पी क्यू की लेंथ हमारे पास आ रही है स्क्वायर रूट 29, क्यू आर की लेंथ आ रही है स्क्वायर रूट 29 और पी आर की लेंथ आ रही है स्क्वायर रूट 58. एज यू कैन सी द टू डिस्टेंस आर इक्वल, टू लेंथ्स आर सेम. इसका मतलब है कि ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और दूसरा है राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब हमें ये बताना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस बन रहा है या राइट बन रहा है. तो राइट आइसोसेलेस के लिए वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट लेंथ. एज यू नो दैट स्क्वायर रूट 58 इज द लार्जेस्ट लेंथ, सो विल टेक दैट एज एन हाइपोटेन्यूज. बेस परपेंडिकुलर से फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी दोनों सेम है, ना भी सेम हो तो भी डजेंट मैटर, यू कैन राइट एनी ऑफ देम. आप किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, नाउ यू गोइंग टू रिप्लेस वैल्यू. स्क्वायर रूट 58 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 58 इज इक्वल टू 29 प्लस 29, दैट इज इक्वल टू 58. सो
इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज़ सी ऑप्शन के ये राइट भी है और आइसोसेलेस भी है। ए भी करेक्ट नहीं होगा, जस्ट राइट इज़ नॉट करेक्ट, जस्ट आइसोसेलेस इज़ नॉट करेक्ट। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ राइट प्लस आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। In the fifth part, we have to find midpoint of C minus D and minus DC. As you know that the midpoint formula is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. What are we going to do? We'll simply replace its values. And the values are C minus D divided by 2. C minus D divided by 2. So this is C minus D divided by 2. देन y1 प्लस y2, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है, तो ये आ जाएगा माइनस डी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर y कोऑर्डिनेट। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो उन्होंने इसको थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा हुआ है। हाउ दे हैव रिटन लाइक दिस, c माइनस डी को उन्होंने लिखा है माइनस डी प्लस सी, और इस माइनस डी प्लस सी को दे हैव रिटन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये c माइनस डी तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए और ये बन रहा है वहाँ पे सेकंड ऑप्शन, और ये वाला आपके पास सेकंड ऑप्शन है, तो ये इसको उन्होंने फर्स्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो आपने इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप मिस्टेक कर दें। ठीक है, सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। सी माइनस डी और माइनस डी प्लस सी में कोई फ़र्क नहीं है, इट्स सेम। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज दिस सी पार्ट, दैट इज माइनस डी प्लस सी। और इसके अलावा जो सबसे ऑथेंटिक बात है, इसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता। आप ये देखें, ये आपके पास क्या है, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। अब ये c बाई 2 बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है करेक्ट, माइनस सी माइनस डी बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, c माइनस डी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने इसको रोटेट करके या ट्विस्ट करके लिखा भी है, दोनों की जगह चेंज करके लिखा भी है, तो आपके पास समहाउ आंसर यही वाला बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा माइनस डी प्लस। सिर्फ उन्होंने ऑर्डर्स का चेंज किया है, बट ये कि आंसर आपका यही करेक्ट है। If P23 is the midpoint of A and B, then the coordinates of xy are. We have to tell what are the coordinates of xy, and it is given that P is the midpoint. So simply we are going to use midpoint formula, that is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, and we are going to replace values. Here we have 2 is equals to x minus 3 by 2. हम x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे। आपको पता है कि पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए हम इसको कंपेयर करेंगे। विल राइट 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड लाइकवाइज 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस y बाई 2। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू x माइनस 3, और माइनस 3 जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 इज 7, सो x इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज 7 2, and this is D part. Now in the seventh part we have, if two ordered pairs 4 5 and a plus 1 by 2 b minus 3 are equal, then the value of a is, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और ये गिवन है कि दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं, तो सिंपली हम एंड की जगह पे यहाँ पे सेंटर में इक्वल का साइन रिप्लेस कर देंगे, इक्वालिटी, और इक्वालिटी के बाद हम लोग लिखेंगे 4 5 इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई 2 b माइनस 3। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें b फाइंड नहीं करना, हमें सिर्फ a फाइंड करना है। ठीक है, ये इसमें एडिशनल स्टेप्स हुए हैं। आप a फाइंड करोगे, x कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड वील सॉल्व इट। 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 माइनस 1 आपको पता है 7 होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर होगा 7, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमारे पास आ रहा है 7। In the next part we have, in which quadrant the point -4 minus 6 lie. हमें ये बताना है कि ये जो -4 और माइनस आपको पता है -6 क्या होता है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है -4 प्लस 6। ठीक है, कि -4 प्लस 6 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेट्स ड्रॉ ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा x एक्सिस y एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज हेयर x इज़ पॉजिटिव, x इज़ नेगेटिव, y इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास। देन सेकंड क्वाड्रेंट इज़ x नेगेटिव, y पॉजिटिव, एंड देन इन द थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव बोथ नेगेटिव, x और y दोनों नेगेटिव। आप ये देखें, यहाँ आपके पास x और y दोनों यहाँ पे नेगेटिव है, ये x भी नेगेटिव है और यहाँ पे y भी नेगेटिव है। Now in the next quadrant we have x positive and y negative. ठीक है,
सो आवर आंसर वाज, आवर क्वेश्चन वाज -4 + 6, यानी पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट इज द करेक्ट आंसर. Option B is the correct answer. In the next part, they are saying in the adjoining figure of a line DAC minus DBC, यानी कि जो डिस्टेंस है AC का, उसमें से अगर हम BC के डिस्टेंस को माइनस करें, लेट्स चेक इट आउट. आपके पास ये पूरी फुल लेंथ क्या है, दिस इज AC. इसमें से आपने माइनस करनी है लेंथ BC, इन दोनों को माइनस कर देंगे. ठीक है, जब इसको आप माइनस कर देंगे तो पीछे आपके पास ये लेंथ बच जाएगी AB. ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ AC माइनस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन अगर आप ये देखें तो यहाँ पे भी ए बी ही लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर चेंज है, यानी यहाँ लिखा हुआ है बी ए. अब ए बी लिखें या बी ए लिखें, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना. अगर सपोज आप यहाँ से ए पॉइंट से आप जा रहे हैं बी पॉइंट तक, अब आप ये कहेंगे मैं ए से बी जा रहा हूँ या मैं बी से ए जा रहा हूँ, तो ए की बात है, बिकॉज डिस्टेंस जो आपने कवर किया वो सेम है. सो बोथ बी ए एंड सी, दिस ऑप्शन इज़ एक्चुअली द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपके पास डी ऑप्शन है. इसलिए आपने यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि आपने ये ना हो कि एक करेक्ट ऑप्शन आपको नजर आया तो आप बाकी ऑप्शंस को कंसिडर ही ना करें. आपने ऐसे नहीं करना, आपने सारे ऑप्शंस को थॉरली चेक करना है. ठीक है, अब ये भी हो सकता था कि कुछ बच्चे जैसे ए पार्ट को देखें कि हाँ जी ये करेक्ट आंसर है, बस इसको टिक करके आगे चलेंगे. नो, आपने सारे ऑप्शंस को चेक करना है और उसके बाद फाइनल आपने जो भी आपका आंसर कंक्लूजन है आपने वो लिखना है. सिर्फ एक चीज़ को देख के आपने उसको कंफर्म नहीं कर देना. अब ये क्वेश्चन इसका प्रूव है कि यू शुड लुक एट ऑल द ऑप्शंस. In the next part we have the abscissa on y axis is. ठीक है, पहली बात तो ये कि y axis पे हमारे पास पॉइंट्स क्या होते हैं. ठीक है, सो हियर लेट्स सपोज देयर इज अ पॉइंट ए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं, आपको पता है कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y आपके पास कोऑर्डिनेट जो है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है. y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट हमेशा y एक्सिस पे 0 होता है. ठीक है, अब एब्सेसा क्या होता है, एब्सेसा आपके पास x कोऑर्डिनेट होता है, यानी पहला कोऑर्डिनेट होता है, और ऑर्डिनेट आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा एब्सेसा ऑन y एक्सिस इज 0, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर आपका जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट वो 0 होता है. यानी इस एक MCQ में दो कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं. एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस पे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए. और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एब्सेसा और ऑर्डिनेट क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स लाई करें. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट. Now moving towards 11th part, the minimum number of sides in a polygon is. Polygon, what is a polygon? Polygon is a closed figure. ठीक है, पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर है जिसकी विच हैव मैनी साइड्स, जिसकी डिफरेंट साइड्स होती हैं. ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर हमारे पास इफ़ यू हैव टू लाइंस, आपके पास टू लाइंस है, ये टू लाइंस, आप कुछ भी कर लें, आप टू लाइंस को ज्वाइन नहीं कर सकते. अब ज्वाइन तभी करेंगे जब वो ओवरलैप करेंगे तो वो एक ही लाइन हो जाएगी. ठीक है, सो टू लाइन्स कैन नॉट मेक अ क्लोज फिगर. क्लोज फिगर हमेशा थ्री लाइन से ही बनती है. दैट्स वाई आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो टू हो ही नहीं सकता. ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स पूछिए तो वो हमारे पास थ्री आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम में तो इन्फिनिट लाइन्स आती हैं आपकी, मिनिमम में हमारे पास थ्री साइड्स हैं. सो मिनिमम पॉलीगॉन फॉर्म करने के लिए जो कि क्लोज फिगर है, वी नीड थ्री साइड्स. तो इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. In this part we have if x is less than 0 and y is greater than 0, then minus xy will be in quadrant. माइनस एक्स वाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. पहले ज़रा क्वेश्चन पे फोकस करें. वो ये कह रहे हैं कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो हैं माइनस एक्स और वाई. अब वो कह रहे हैं कि y तो ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, यानी y तो आपके पास जाएगी. अब जो x लेस देन 0 है, अगर आप x की वैल्यू लेट सपोज x आप लेते हैं -2, लेस देन 0 क्या होता है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन. ठीक है, इन्फिनिट टाइम्स आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है. सो वो कह रहे हैं कि x नेगेटिव है, तो अगर आप नेगेटिव x पुट करें, लेट सपोज मैं आपको समझाने के लिए -2 ले लेती हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x कोऑर्डिनेट भी प्लस आ गया और y कोऑर्डिनेट भी प्लस है. वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 ही होता है. अगर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा. ठीक है, सो दैट्स वाई सिंपली आपने नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस करनी है x की जगह पे. ठीक है, जो कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल गिव यू पॉजिटिव आंसर. सो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों आपके पास पॉजिटिव आ रहे हैं
और अगर आपको कोऑर्डिनेट्स याद हो, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने इसको याद करना होता है तो आप ये याद करें कि ये प्लस प्लस होता है यानी सेम साइंस, और ये माइनस माइनस होता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, बिकॉज एक्स क्वाड्रेंट वाई क्वाड्रेंट दोनों हमारे पास आफ्टर वर्किंग। यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है। In the fifth part, we have to find midpoint of C minus D and minus DC. As you know that the midpoint formula is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. What are we going to do? We will simply replace its values, and the values are C minus D divided by 2, C minus D divided by 2. So this is C minus D divided by 2. देन y1 प्लस y2, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है, तो ये आ जाएगा माइनस डी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर y कोऑर्डिनेट। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो उन्होंने इसको थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा हुआ है। हाउ दे हैव रिटन लाइक दिस, c माइनस डी को उन्होंने लिखा है माइनस डी प्लस सी, और इस माइनस डी प्लस सी को दे हैव रिटन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये c माइनस डी तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए और ये बन रहा है वहाँ पे सेकंड ऑप्शन, और ये वाला आपके पास सेकंड ऑप्शन है, तो ये इसको उन्होंने फर्स्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो आपने इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप मिस्टेक कर दें, ठीक है। सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। सी माइनस डी और माइनस डी प्लस सी में कोई फ़र्क नहीं है, इट्स सेम। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज दिस सी पार्ट, दैट इज माइनस डी प्लस सी। और इसके अलावा जो सबसे ऑथेंटिक बात है, इसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता। आप ये देखें, ये आपके पास क्या है, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। अब ये c बाई 2 बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है करेक्ट, माइनस सी माइनस डी बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, c माइनस डी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने इसको रोटेट करके या ट्विस्ट करके लिखा भी है, दोनों की जगह चेंज करके लिखा भी है, तो आपके पास समहाउ आंसर यही वाला बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा माइनस डी प्लस, सिर्फ उन्होंने ऑर्डर्स का चेंज किया है, बट ये कि आंसर आपका यही करेक्ट है। Next sixth part is if P23 is the midpoint of A x4 and B minus 3y, then the coordinates of x y are। आपको ये given है कि P midpoint है A और B का, ठीक है, तो आपने x y के coordinates फाइंड करने हैं। Let's start the question। midpoint formula हमें पता है क्या होता है। midpoint formula is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। We will use this midpoint formula। So the correct option is option A, that is quadrant 1। In next question, they are saying the point 35 is at minimum distance from x-axis, y-axis, origin of both A and B। Let's see कि आपका जो point 35 है, ये इसका distance minimum किसके साथ होगा, कब होगा। So for that purpose we have to draw it। हमें plot करना है पहले point 35, तो हम approximate draw कर लेते हैं 1 2 3, then 1 2 3 4 5। तो ये जो 35 पॉइंट है वो यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो एक्स एक्सिस इसका डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट्स, और ये पॉइंट हमारे पास है 35, और इसका जो डिस्टेंस आपके पास है वाई एक्सिस से वो है 3 यूनिट्स, और ओरिजिन से भी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके चेक कर सकते हैं, भाई नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारे पास दिस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इसका डिस्टेंस नियरेस्ट है, ठीक है, वाई एक्सिस से। आप देखिए इसका 3 यूनिट्स है वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज वाई एक्सिस, दैट इज ऑप्शन बी। Yes. Now in the next question we have, if m is the midpoint of line segment ln, then ln ratio mn is। अब ये गिवन है कि आपके पास m मिड पॉइंट है ln का, तो थोड़ा सा हम इसकी पिक्टोरियल फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ln, दिस इज l एंड दिस इज n, और इसका मिड पॉइंट गिवन है वो हमारे पास है m। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि रेशो होगी ln रेशो mn की। इससे पहले आप ये देखिए, अगर आपके पास ये एल एन की रेशो 2 है, बिकॉज सम ऑफ रेशोज अगर हम करें तो 2 बनता है, तो एल एम की रेशो 1 है और एम एन की रेशो भी 1 है, ठीक है। यानी एल एम की रेशो अगर 1 की लेंथ 1 है, एम एन की लेंथ 1 है, तो हमारे पास एल एन की लेंथ जो है वो 2 हो जाएगी, बिकॉज 1 + 1 क्या होता है, इट्स 2। इसको हम 2 ले लेते हैं। सो इफ़ यू पुट वैल्यूज एल एन रेशो एम एन, एल एन क्या है, एल एन इज़ 2, एम एन इज़ 1। सो इसका आंसर आ जाएगा
2:1, ठीक है। क्वेश्चन देखें, m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, तो हमने पहले मिड पॉइंट ले लिया किसका, एल एन का, और उसके बाद हमने इनकी रेशो ले ली। जब तो मिड पॉइंट है, सेंटर है, ठीक है, तो उसको हम 1:1 करके ले सकते हैं क्योंकि वो 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट, दैट इज 2:1। In the next question we have, all the bisectors of a line segment always pass through। जो आपके पास बाइसेक्टर्स होते हैं लाइन सेगमेंट के, जैसे आपके पास लेट्स सपोज एक लाइन ये है और एक की लाइन ये है, ठीक है, जो आपके पास अब इन दोनों लाइंस का जो बाइसेक्टर है वो हमेशा मिड पॉइंट से पास करते हैं। आपको एक रूल बताया था कि वो रूल ये है कि ऑल बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट के बाइसेक्टर्स हमेशा मिड पॉइंट से पास करते हैं या उनके मिड पॉइंट्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। सो C option is the correct option. Moving towards 16 part, they are saying the below figure is a kite. What will be the coordinates of the point of intersection of both diagonals? ठीक है, हम लोगों को बताना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ डायगोनल्स का क्या है, जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है। इससे पहले आपको ये बताना चाहिए कि काइट की प्रॉपर्टी क्या है। काइट की प्रॉपर्टी ये है कि एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, और डायगोनल बाइसेक्ट करना या लेंथ को बाइसेक्ट करने के लिए वी यूज़ मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अगर आपके पास एक लेंथ 2 इक्वल पार्ट्स में कट करी है, बाइसेक्ट करी है, तो हम उसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं। एज यू सी इन द डायग्राम यू कैन सी दैट ए सी इज द डायगोनल जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है, और बी डी 2 इक्वल पार्ट्स में कट नहीं हो रहा है बिकॉज उसकी जो फर्स्ट लेंथ है वो स्मॉलर और अदर लेंथ बहुत बिग है। सो वी आर गोइंग टू यूज मिड पॉइंट फार्मूला ऑन ए सी। अब हम ए सी पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो व्हाट इज द मिड पॉइंट फार्मूला? इट्स x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर जब हम x कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, ठीक है, तो दीज आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी, दैट इज 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/2, दैट इज 2। और हम y कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 3 - 3, सो 3 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। सो 2 0 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन डी। इसके लिए आपको 2 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये कि डायगोनल जब बाइसेक्ट करता है तो वी यूज मिड पॉइंट फार्मूला। दूसरी प्रॉपर्टी कि काइट के डायगोनल्स में से एक डायगोनल इक्वल पार्ट में कट कर रहा होता है, एक डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज in the given figure if S is the midpoint of PQ then SR is। आपको गिवन ये है कि S midpoint है PQ का, ठीक है, S midpoint है, ये हमें गिवन है, this S, ठीक है। so we are going to use midpoint formula on PQ। हम PQ पे midpoint का फॉर्मूला यूज करेंगे, right? दिस इज द मिड पॉइंट फार्मूला आपने यूज़ किया है, आपके पास आ जाएगा -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 और 4। सो मिड पॉइंट हमारे पास एस का आ गया 1 4। अब आपने फाइंड करना है एस आर का डिस्टेंस। अब सिंपली यू कैन यूज़ डिस्टेंस फार्मूला एज वेल। आप डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेंटल मैथ से देखिए, ये आपके पास क्या है, क्योंकि ग्राफ अगर हम प्लॉट हमारे पास हुआ है 1 - 1 ये है, ठीक है, और एस के पॉइंट्स क्या है, इट्स 1 4 1 4। इसका जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है, इसका मतलब है कि डायरेक्टली इसके ऊपर लाई कर, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, टेढ़ी लाइन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, टिल्ट नहीं है ये, ठीक है। सो आपने सिंपली -1 से 4 तक जाना है। जब आप -1 से 4 तक जाएंगे तो हाउ मेनी स्टेप्स यू विल मूव? -1 से 0 1, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। सो यू विल मूव 5 स्टेप्स अप, ठीक है। अब जब 5 स्टेप्स आप जाओगे तो यू विल गेट टू पॉइंट एस, ठीक है। सो आप डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, और एंड योर डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको उस टाइम पे कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो दैट इज 5। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन 5। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 20 यूनिट्स। आपको गिवन है कि ए बी जो पॉइंट है उनका डिस्टेंस 20 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देन यू आर गोइंग टू रिप्लेस वैल्यूज। ये आपके पास a है, इसमें फर्स्ट x1 हो जाएगा और b हमारे पास आ जाएगा x2, ठीक है। राइट 0 - c होल स्क्वायर प्लस -1 - 10 होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ किया, -c का स्क्वायर आ जाएगा +c स्क्वायर, और -11 आ जाएगा, -10 - 1 इज -11 स्क्वायर, दैट इज 121। अभी आपके पास क्या है, 20 हमने रिप्लेस कर दिया है ए बी को, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट द डिस्टेंस इज 20 यूनिट्स। ये हमें गिवन है तो हम इसी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। देन वी आर गोइंग टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे,
तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली आई हैव रिटन सी स्क्वायर प्लस 121 और 20 का स्क्वायर होता है 400। 121 यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 400 माइनस 121 आ जाएगा 279। अब डोंट फॉरगेट दिस थिंग दैट इन द ऑप्शंस इट्स रिटन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 279, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमें आंसर फाइंड करना है सी का, सी स्क्वायर का नहीं करना, ठीक है। सो वो ऑप्शन इसी तरह से देते हैं जो थोड़े से ट्रिकी हो। तो आपने देन यू आर गोइंग टू टेक स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 31। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन ए। Moving towards next part, the length of the hypotenuse of triangle XYZ whose vertices are 7, 4, 7, 1 and minus 3, 1, ठीक है। 3 vertices आपको given है, आपने ये बताना है कि इसमें से hypotenuse कौन सा है। It's very simple. Simply you have to use distance formula on these 3 vertices, और जो length सबसे largest होगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। This is the working of this question. You are going to give name to these points, these vertices P, Q and R, A, B, C भी दे सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, नाम ना भी लिखे तो भी इट्स फाइन। P, Q का डिस्टेंस फाइंड किया 3 आ गया, Q, R का डिस्टेंस फाइंड किया 10 आ गया, और जब आप P, R का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 109, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 होता है स्क्वायर रूट 9 के, 10 होता है स्क्वायर रूट 100 के, और ये है स्क्वायर रूट 109, तो ऑब्वियसली दिस इज द लार्जेस्ट लेंथ जो कि हमारे पास है पी आर। सो हमें ये बताना था कि हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 109 एंड विच इज द ऑप्शन सी, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद वर्टिसेस 4, 0, 2, 1 एंड -1, -5। अब क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पहले आपने तीनों वर्टिसेस की लेंथ फाइंड करनी है, और लेंथ से यू विल टेल द हाइपोटेन्यूज व्हिच इज द लार्जेस्ट लेंथ। पहला पार्ट तो बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उन्होंने एक एडिशनल चीज़ बता दी कि जब आप आइडेंटिफाई कर लें कि हाइपोटेन्यूज कौन सी लेंथ है, तो उस लेंथ का मिड पॉइंट फाइंड कर लें, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू you're going to find lengths of all these vertices by giving them name P, Q and R. P, Q का distance हमने find किया, that is square root 5, ठीक है। सॉल्व करके वैल्यूज रिप्लेस करके got this answer. Q, R करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -1, -2 होल स्क्वायर, -5, -1 होल स्क्वायर रूट करेंगे 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और आर पी हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। सो द लार्जेस्ट लेंथ इज आर पी, जो कि हमारे पास है 5 स्क्वायर रूट 2, और ये हमारे पास आ जाएगी largest length, ठीक है। this is the hypotenuse. what we have to do, we have to find midpoint of the hypotenuse, ठीक है। पहले हमने hypotenuse को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो है पी आर। अब आपने इसका फाइंड करना है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, सो यू राइट 4 प्लस -1, यानी कि 4 -1 डिवाइडेड बाई 2, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट 0 -5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आ गया 4 -1 होता है 3 बाई 2 और -5 बाई 2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर 20th पार्ट, ठीक है, जो कि आपने फाइंड किया है मिड पॉइंट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। In the next part, the question is if the end points of diameter of a circle are 4, 5 and 6, 9, ठीक है। आपको पता होना चाहिए what is a diameter। ये हमारे पास सपोज इट्स अ सर्कल, ठीक है। एक ऐसी लेंथ जो सेंटर से पास करे उसको हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। हाफ मीन्स मिड पॉइंट, ठीक है। यानी सी इज द मिड पॉइंट, यानी ये पार्ट इसका हाफ है और सी उसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर फाइंड करने के लिए वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला। हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे ताकि हमारे पास इसका सेंट्रल वैल्यू आ जाए। सो वी आर गोइंग टू राइट सेंटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। येस, मिड पॉइंट हमारे किसका फाइंड करना है, 4, 5, 6, 9 को करना है। सिंपली यू आर गोइंग टू ऐड देम एंड डिवाइड बाई 2। 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 बाई 2, ठीक है। और 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 जो कि हो जाएगा 14 बाई 2। करेक्ट ऑप्शन इज 5, 7, दैट इज द ऑप्शन सी। In next part, they're saying if 2 points 2, 3 and 4, 5 are at equal distance from 3t, then the value of t is। आप ये देख लें क्वेश्चन को ध्यान से कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं 2, 2, 3, 4, 5, इनका डिस्टेंस 3t से इक्वल है, यानी कि 2, 3 का 3t से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा 4, 5 और 3t के डिस्टेंस के, ठीक है। सो अगर इफ़ वी गिव देम नेम, क्योंकि नेम दे के हमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्वेश्चन पता होता है कि हम किसकी बात करें, ठीक है। दिस इज पी, लेट्स सपोज दिस इज क्यू एंड दिस इज टी। आप अपनी मर्जी के भी कोई नेम दे सकते हैं। पी टी मतलब पी और टी का डिस्टेंस, ठीक है, और क्यू और टी का डिस्टेंस, ठीक है। पी टी इज इक्वल टू क्यू टी, ये हमें गिवन।
सो वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फार्मूला ऑन PT फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस t - 3 होल स्क्वायर, ठीक है। 3 से हम 2 की तरफ गए, 3 - 2 एंड t - 3। देन वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फार्मूला ऑन QT, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 होल स्क्वायर एंड t - 5 होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 - 2 क्या होता है? 3 - 2 इज 1, सो वी रिटन 1 स्क्वायर। देन t - 3 होल स्क्वायर, वी आर गोइंग टू यूज formula of a minus b whole square over here, that is a square minus 2ab plus b square, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा t - 3 होल स्क्वायर में, ठीक है। दैट इज t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। डायरेक्ट लिख लिया आंसर, बट यू कैन डू इट योर सेल्फ एज वेल, लेकिन आप उसको प्रॉपर वर्किंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। देन t - 5 होल स्क्वायर आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25, ठीक है। देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू, विल अरेंज इट। अरेंज करके हमारे पास आ जाएगा t स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, देन 9 + 1, 9 + 1 क्या है? 10। लाइकवाइज t स्क्वायर माइनस 10t ये आ गया। उसके बाद वील राइट 1 + 25, -1 का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। सो 1 + 25 इज 26, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 10 प्लस 26 होल स्क्वायर रूट। देन वी नीड टू फाइंड द आंसर ऑफ t, और ये जो t है ये अंडर स्क्वायर रूट है। सो वी आर गोइंग टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम इधर भी स्क्वायर कर लेंगे और इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, एंड यू राइट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10 इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 26। यू कैन शिफ्ट ऑल ऑफ देम टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एंड बाय शिफ्टिंग देम यू विल गेट टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये आपके पास क्या है? दिस इज माइनस 60 एंड दिस विल बिकम प्लस 10t, 10t माइनस 60, और ये आपके पास क्या है? प्लस 10 और ये 26 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 26, राइट। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। टी स्क्वायर कैंसिल हो गया था, 10t माइनस 60 आ जाएगा 40, और माइनस 26 प्लस 10 आ जाएगा माइनस 16। माइनस 16 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो 4t इज इक्वल टू 16 आ गया। अब ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड्स, ये आ जाएगा आपके पास 4। सो t इज इक्वल टू 4, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर t, दैट इज द ऑप्शन B. In next part they are saying a point P is at equal distance from the x-axis and lies in the third quadrant. If it is at distance of 4 units from y-axis, then its coordinates are. Okay, we have to tell about point P. पहली बात तो ये कि lie कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। is saying that this point P is equal distance from x-axis and y-axis, ठीक है, और ये हमारे पास इसका डिस्टेंस सेम है। ये इधर भी 4 यूनिट्स आ रहा है, ये लेंथ भी 4 यूनिट्स है, और ये लेंथ भी 4 यूनिट्स है, ठीक है। अब अगर आपके पास एक्स एक्सिस 4 यूनिट्स है, तो जब जो पॉइंट बनेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट इधर, और यहाँ से भी 4 यूनिट्स है। ये आपके पास जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, वो हमारे पास 4 यूनिट्स है, और यहाँ पे भी 4 यूनिट्स है। तो ये पॉइंट क्या होगा? दिस इज 4 4, बट एज इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपको पता है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -4 ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप दोबारा से देख लें, अ पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सेस, ठीक है। ये पॉइंट एक्स एक्सेस से भी और वाई एक्सेस से भी 4 यूनिट्स का इसका डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से भी 4 यूनिट्स है और यहाँ से भी 4 यूनिट्स है। तो दिस पॉइंट इज 4 4, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से ये हो जाएगा -4 डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। In the next part they are saying a line AB intersects the x-axis at C. पहले तो हम यही चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक लाइन है या एक पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो उसका मतलब ये है कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, ठीक है। और दे आर सेइंग दैट दिस पॉइंट इज C विद द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ये हमें गिवन है कि जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है ओरिजिन से। लाइकवाइज वो कह रहे हैं कि द वाई एक्सिस एट डी, और वो लाइन जो है वो पास करी है वाई एक्सिस से पॉइंट डी पे विद द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 0 6। सो सी डी इज द लाइन जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से
पास कर रही है और उसका पॉइंट सी और डी है, ठीक है. व्हाट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी डी. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, पॉइंट सी इज ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब इसका पॉइंट 30 है. पॉइंट डी इज ऑन वाई एक्सिस, इसका पॉइंट 06 है. वी हैव टू यूज डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सिंपली यू गोइंग टू रिप्लेस वैल्यूज. ये हो जाएगा 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, 6 minus 0 whole square, and then you're going to solve it and you'll get this answer 3 square root 5. So the correct option is 3 square root 5. I hope आप लोगों को MCQ समझ में आ गए होंगे. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.